بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے قربانی کرنے والے کے لیے بال کتروانے کا حکم اور قربانی کے جانور کا بیان۔ تو دیکھیے، ہم کتاب الضحایا پڑھ رہے ہیں۔ آج اسی میں ہم تیسرا ٹاپک پڑھیں گے، یعنی باب الرجل یأخذ من شعرہ فی العشر وهو يريد ان يضحی۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ عمر بن مسلم لیثی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا سعید بن مسیب کو کہتے ہوئے، اور سعید بن مسیب یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کا جانور ہو، جس کو وہ عید کے دن ذبح کرنا چاہتا ہو، تو جب ذی الحجہ کا چاند ہو تب سے قربانی تک بال نہ کتروائے۔ تو دیکھیے، اس باب میں ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو، اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ ممانعت جو ہے یہ مکروہ تنزیہی پر محمول ہے، یعنی کاٹنا خلاف اولا ہے، اور اس کا قربانی کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں بال یا ناخن کاٹ لے تب بھی اس کی قربانی بلا کراہیت ادا ہو جائے گی۔ تو دیکھیے، اس حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کرے، جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، اور بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے۔ اور یہ استحباب جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ البتہ بعض اکابرین یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کریں، یعنی عام لوگوں کی طرح قربانی کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹیں، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر غیر ضروری بال اور ناخنوں کو 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہوں تو پھر ایسی صورت میں صفائی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یکم ذی الحجہ مقرر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، یہ اس وجہ سے مقرر کی گئی کہ قریب ترین کسی زمانے کی تعیین کی ضرورت تھی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر شخص جب اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے خاص کرے اسی وقت سے اسے ناخن یا بال کاٹنا منع ہو۔ لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا ہے۔ دین کی عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے تو غور کرنے پر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر حکم میں نظم جو ہے، یعنی ضوابط جو رکھے گئے ہیں، وہ واضح نظر آئے گی۔ اس لیے اس نظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے اس کے اصول و ضوابط، اس کا نظم قائم کر دیا جائے۔ اس لیے ایک قریب ترین مدت مقرر کی گئی۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عید الاضحیٰ سے 1-8 دن پہلے وقت مقرر کر دیا جاتا، لیکن اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند مقرر کیا گیا، تو اس لیے کہ قربانی کی عبادت کا تعلق عید الاضحیٰ اور حج کی عبادت سے ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عید الفطر آتی ہے، اور اسلام نے شرعی احکام کے اوقات کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، اور اس کا مدار
कमरी महीने और तारीख पर रखा है। इसलिए रमजानुल मुबारक चांद देखकर यानी शुरू होता है और चांद देखकर ही खत्म होता है। जिलहज्जा का चांद देखते ही हज की तैयारी तकरीबन इख्तिताम को पहुंच जाती है और जिलहज्जा के चांद से ईद उल अजहा का दिन और सही वक्त की तायीन भी हो जाती है। इसलिए कुर्बानी की तायीन में भी जिलहज्जा के चांद को दखल हुआ और ज़िमनी तौर पर इस बात की भी तरगीब दे दी गई कि मुसलमानों को चाहिए कि वो कुर्बानी का जानवर कुछ दिन पहले लेकर आएं ताकि इससे उनसियत कायम होने के बाद कुर्बानी करने से नफ्स की कुर्बानी और जान निसारी के जज्बात जो हैं उसमें तरक्की हो। इसी तरह जानवर जल्दी लेकर इसकी खिदमत करने और बाल और नाखून वगैरह ना काटने से जो मैल कुचैल की कैफियत होगी तो इससे इंसान को अपनी हकीकत की तरफ भी ध्यान होगा और इसके अंदर आजिज़ी और तवाज़ो भी पैदा होगा। अगली हदीस की इबारत पढ़ते हैं हम, जिसका उन्वान है कुर्बानी का जानवर किस किस्म का बेहतर है, यानी बाबू मा युस्तहब्बु मिन ज़हाया। इबारत देखिए, वबी क़ाल हद्दसना अहमद इब्न सालिह क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न वहब क़ाल अख़बरनी हैवतु क़ाल हद्दसनी अबू सख़्र अन इब्न कुसवैत अन उर्वत इब्न ज़ुबैर अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिकब्शिन अक़रना यतउ फी सवादिन व यंज़ुरु फी सवादिन व यबरुकु फी सवादिन व उतिय बिही फ़ज़हा बिही फ़क़ाल या आइशतु हलुम्मियल मुदियता थुम्मा क़ाल इश्हज़िहा बिहजरिन फ़फ़अलतु फ़अख़ज़हा व अख़ज़ल कब्शा फ़अज़जअहु व ज़बहहु फ़क़ाल बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन थुम्मा ज़हा बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तर्जुमा देखिए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमारा हुक्म दिया, बिकब्शिन एक खूबसूरत मेंढे का हुक्म दिया, अकरना जो के सींग वाला था, यतउ बमाना यमशी यतउ फी सवादिन जो चलता हो सियाही में, व यंजुरु फी सवादिन जो देखता हो सियाही में, व यबरुकु फी सवादिन और बैठता हो सियाही में, व उतिया बिही बस लाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मेंढा, फिर आपने उसकी कुर्बानी की। फ़क़ाला फिर आपने फरमाया, ए आयशा हलुम्मी बमाना हाथी अलमुदियता मुझे छुरी दीजिए। सुम्मा क़ाल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश्हज़िहा बिहजरिन। इश्हज़िहा इसमें जो हा है उस ज़मीर का मर्जा जो है वो अलमुदिया है, यानी उस छुरी को तेज करो पत्थर के साथ। फ़फ़अलतु फिर मैंने ऐसा ही किया, यानी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ऐसा ही किया कि छुरी को पत्थर से तेज किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छुरी को लिया। अख़ज़हा इसमें हा जो ज़मीर है इसका इशारा अलमुदिया की तरफ है। व अख़ज़ल कब्शा और पकड़ा मेंढे को, फ़अज़जअहु फिर उसको नीचे लिटाया। फिर आपने उस मेंढे को ज़िबा फरमाया और ज़िबा करते हुए फरमाया, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मती। और बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम के साथ ज़िबा करता हूँ, ए अल्लाह इसको कबूल फरमा मोहम्मद की तरफ से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तरफ से और उम्मते मुहम्मदिया की तरफ से। सुम्मा ज़हबिही फिर इसको ज़िबा फरमाया। अब यहाँ पर देखें, हमने हदीस में 3 लफ्ज पढ़े हैं, यक़उ फी सवादिन यानी वो चलता हो, फिर आगे फरमाया अकरना सींगों वाला। अब यतउ फी सवादिन चलता हो सियाही में, इसका क्या मतलब हुआ? तो मतलब ये है कि उसकी टांगे स्याह हों, क्योंकि चलना तो टांगों से होता है, तो स्याही में चलता हो मतलब ये कि टांगे उसकी काली हों, स्याह हों। और फिर आगे फरमाया व यंजुरु फी सवादिन और स्याही में देखता हो, मतलब ये है कि उसकी आंखें स्याह रंग की, सुरमई रंग की हो। फिर आगे फरमाया व यबरुकु, अब ये बमाना है यजलिस के कि बैठता हो, फी सवादिन स्याही में, मतलब ये है कि इसका पेट और पहलू
जो हिस्सा बैठते हुए जमीन पर लगता है वो भी स्याह रंग का हो। तो इन 3 अल्फाज का माना ये है। फिर आपने इसको लिटाया और ज़िबा कर दिया और दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन व आली मुहम्मदिन व मिन उम्मती मुहम्मदिन। फिर कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते वक्त क्या करना चाहिए ये बताया गया कि उसको बाएं करवट पर लिटाया जाए। ये इसके लिटाने का तरीका बताया जा रहा है कि कुर्बानी का जानवर उसके दाएं और बाएं करवट होती है जानवर के एतबार से, तो इसकी बाएं करवट पर इसको लिटाया जाए जिससे उसका सर ज़िबा करने वाले के बाएं हाथ की तरफ हो जाए और वो इसके सर को बाएं हाथ से दबाकर दाएं हाथ के साथ छुरी पकड़कर सहूलत के साथ ज़िबा कर सके। तो इस लिटाने की शक्ल ये होगी कि उज़हिया के कुर्बानी के जानवर का सर जुनूब की तरफ होगा और टांगे जो हैं वो शमाल की तरफ रखी जाएंगी और बाईं करवट पर लिटाया जाएगा ताकि जानवर का रुख जो है वो किबला की तरफ हो जाए। और इस हदीस में ये भी बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढे की कुर्बानी यानी एक जानवर एक था और वो भी बड़ा नहीं था बल्कि छोटा जानवर था, एक मेंढे की कुर्बानी अपनी तरफ से और अपने अहले बैत बल्कि तमाम उम्मत की तरफ से की। तो क्या एक बकरी या एक मेंढे की कुर्बानी में बहुत से लोग शरीक हो सकते हैं? तो इस बारे में तफसील है। बाज उलमाए किराम इस बारे में फरमाते हैं और इमाम मालिक और इमाम औज़ाई रहमहुमुल्लाह का भी यही मसलक है कि एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी करना जायज है, अगरचे घर वाले 7 से भी ज्यादा हों। 2 घर वालों की तरफ से अलबत्ता एक बकरी कुर्बानी करना जायज नहीं है, अगरचे इनकी तादाद 7 से कम हो, लेकिन घर चूंकि 2 हैं इसलिए जायज नहीं होगी। और हनफिया की तरफ से इसका जवाब ये दिया गया है कि या तो ये कहा जाएगा कि ये हदीस मनसूख है या फिर ये कहा जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है कि एक छोटा जानवर बकरी या मेंढा वगैरह वो 1 से जायद आदमियों की तरफ से कुर्बान करना ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से है, तो फिर हर बंदे को इसकी इजाजत नहीं है। और तीसरी तावील इस हदीस में जो कि इमाम मालिक, इमाम औज़ाई और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह का मसलक है, वो ये तावील बयान की गई है कि इससे मकसूद तो सवाब में शरीक होना है, ना कि उज़हिया में, यानी वो कुर्बानी जो है वो सब की तरफ से नहीं कहलाएगी। हाँ, अलबत्ता कुर्बानी का सवाब सब की तरफ मंसूब किया जा सकता है। और हनफिया के नजदीक हदी और उज़हिया, पहले तो आप इसका फर्क देख लीजिए कि हदी और उज़हिया में क्या फर्क है। इन दोनों में हदी इस जानवर को कहा जाता है जो हाजी हज के दौरान हरम शरीफ में अपनी कुर्बानी के लिए भेजता है, इस जानवर को हदी कहते हैं। और जो पूरी दुनिया में कुर्बानी की जाती है इसको अज़वाही या उज़हिया कहा जाता है। तो हनफिया का मसलक ये बयान हुआ कि उनके नजदीक हदी और उज़हिया दोनों किस्म के जानवरों में 7 आदमियों की शराकत हो सकती है। अब हदी से मुराद ऊंट, गाय, भैंस वगैरह ये बड़े जानवर मुराद हैं, लेकिन शर्त ये है कि तमाम शुरका जो हैं उनका मकसूद इस जानवर को ज़िबा करने से अल्लाह की कुर्बत हो, अगरचे कुर्बत की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे कोई आदमी ज़िबा कर रहा है किसी दौरान हज यानी शिकार करने से बतौर जजा के या फिदिये के तौर पर, या कुर्बानी ही मकसूद है या किसी का अकीका है, लेकिन बहरहाल अगर इन 7 शुरका में से किसी एक का मकसूद कुर्बे इलाही ना हो बल्कि अकली लहमिन यानी गोश्त का खाना मकसूद हो, तो फिर ये कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और इमाम शाफई के नजदीक जो है हर सूरत में जायज है, चाहे 7 आदमियों में से सब का मकसूद कुर्बत हो या ना हो। और हनफिया और शवाफे दोनों का इस पर इत्तिफाक है कि 7 से जायद शुरका की शिरकत जायज नहीं है, यानी एक जानवर में 7 से ज्यादा शरीक लोग नहीं हो सकते। तो आज का हमारा सबक यही मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।